Hello and welcome everyone. I am Santosh Baliga, and in this lecture we will continue with the part 2 of the chapter of Law of Torts. So without wasting any time, let me just start off with the first topic for the day, that is whether mens rea, that is guilty mind, is applicable in case of law of torts or not. Like we have understood that in criminal laws, mens rea is the most important ingredient. So mens rea, whether it is applicable to law of torts, that is the question over here. So the answer is it is applicable in some cases and it is not at all applicable in some other cases. Now which are these cases? That is, if the state of mind or intention, mens rea means the state of mind or intention, is considered for tortious liability in cases of assault, battery, deceit, conspiracy, etc. But wherever there is an strict and absolute liability, in those cases, state of mind or intention does not matter. Although the person would have not done it intentionally, it would not matter in those cases. Also, if it was not his fault, still he will be held liable for the act. So in case of strict and absolute liability, state of mind or mens rea is not applicable, is not considered. Whereas in case of assault, battery, deceit or conspiracy, in those cases state of mind or intention or guilty mind or mens rea is actually considered. Strict and absolute liability means that the person, if he has committed a particular act which is wrongful act and which is creating an legal injury or legal damage to any other person, then in that case the intention or state of mind is not considered. So now let's get into the module part of it and see what module is saying about mens rea in its own wordings. Module में mens rea can be interpreted in two ways. One is fault or state of mind when relevant. See, many branches of law of tort, जैसे कि मैंने बताया आपको कि assault हो गया, battery हो गया, false imprisonment हो गया, फिर deceit हो गया, malicious prosecution हो गया, conspiracy हो गया. ये सारे cases में state of mind या mens rea होगा तो उसे कंसिडर किया जाएगा टू असर्टन द लायबिलिटी. ओके, defendant's conduct may be innocent and the act done might be due to the accident. That all should be taken into account. फिर liability without any fault, second जो part है इसका, where cases where mental state of the doer stands irrelevant. मतलब ये वो cases है जहाँ पे जो mental state है, जो mens rea है, वो कैसा है, irrelevant है, और liability still falls on the shoulder of the doer even if that act was done without any wrongful intentions or malice. और ये कौन सा टाइप के लाइबिलिटी में आता है? ये आते हैं स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आता है. स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आता है. ओके, liability under law of torts may also be fixed even if mens rea is not present. So I hope both the points is clear to you in terms of mens rea. तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया है. लेट अस गो थ्रू द एग्जाम्पल्स. इन केस ऑफ डिफेमेशन द डिफेंडेंट इज लायबल इवन व्हेन ही डिड नॉट इंटेंड टू डिफेम बट एक्टेड इन ए वे दैट टर्न्ड आउट टू बी डिफेमेटरी. तो आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे थे जो कि डिफेमेटरी नहीं था, इंटेंशन डिफेमेटरी नहीं था, बट आपके कहने से किसी का रेपुटेशन क्या हो चुका है, हर्ट हो चुका है, और वो क्या हो चुका है, उसको डिफेमेशन के अंदर उसको कवर कर सकते हैं. तो आपका इंटेंशन ऑल्दो नहीं था, लेकिन फिर भी आपने जो कहा, जो वर्ड्स आपने कहा, जो भी वर्ड्स आपने कहा, वो वर्ड्स कैसे थे, डिफेमेटरी इन नेचर थे, जिसकी वजह से उसे डैमेजेस हुआ है. तो इन दैट केस उसे टॉर्ट करके मान लिया जाएगा. मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर वेयर डेथ और परमानेंट disablement of any person has resulted from an accident arising out of the use of a motor vehicle or motor vehicles, the owner of the vehicle shall be jointly or severally liable to pay the compensation in respect of such death or disablement. The amount of compensation in the respect of death is 50,000 and in case of permanent disability is 25,000 रुपीज़. तो ये क्या है? ये बेसिकली ये प्रोविज़न कौन सा है? सेक्शन 140 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 है. यहाँ पे क्या बोला कि अगर किसी भी पर्सन के साथ में आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आपके व्हीकल से हो जाता है, और वो पर्सन को इधर परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है या इन केस अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है, तो इन दैट केस यू आर लायबल
ऑल्दो आपका कोई इंटेंशन नहीं था एक्सीडेंट करने का, आप सारा यू हैव टेकन ऑल द ड्यू केयर, बट स्टिल एक्सीडेंट हो गया, तो इन दैट केस आपको मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा ऐसे पर्सन को जिसको परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है या डेथ हुआ है। 50,000 रुपीज़ या 25,000 रुपीज़ उसके लिए निर्धारित किया गया है अंडर सेक्शन 140 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988. Okay, so now we will move into strict and absolute liability. We will understand what is strict liability and what is absolute liability. So एक बार हम लोग यही से करते हैं, डायरेक्टली मॉड्यूल से करते हैं इसको। द डिफेंडेंट इज लायबल इवन दो द हार्म टू द प्लेंटिफ अकर्ड। देखो ये वर्डिंग्स पढ़िए, डिफेंडेंट इज लायबल इवन दो द हार्म टू द प्लेंटिफ अकर्ड विदाउट इंटेंशन और नेग्लिजेंस ऑन द डिफेंडेंट्स पार्ट। मतलब जो डिफेंडेंट है उसका कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी क्या क्या कॉज हो गया, प्लेंटिफ को हार्म कॉज किया, और वो हार्म शायद ऑल्दो इट वाज विदाउट इंटेंशन और नेग्लिजेंस, स्टिल इन दैट केस क्या हो जाएगा, डिफेंडेंट इज लायबल। तो ये है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आपका इंटेंशन इज इररिलेवेंट, इंटेंशन इज irrelevant. ओके, और इसमें क्या है, इन द अदर वर्ड्स डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल विदाउट फॉल्ट। लायबल विदाउट फॉल्ट भी इसे कहा जाता है। ओके, दिस केसेस फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में ये केसेस फॉल होते हैं। पहला कैटेगरी कौन सा है, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब क्या है, आपने कोई ऐसा डेंजरस सब्सटेंस आपके विसिनिटी में रखा है, आपके प्रॉपर्टी में रखा है, जिसका एस्केप होने से क्या हो जाएगा, एस्केप होने से किसी ना किसी को हार्म पहुंच सकता है, तो इसको बोलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। अगर ऐसा होता है कोई, अगर आपने केमिकल सब्सटेंस या कुछ रखा हुआ है और जो कि हजार्डस है, और वो क्या हो जाता है, उसका लीकेज हो जाता है, और उसकी वजह से आपके जो नेबरिंग लोकेलिटी है, नेबर्स है, उनको क्या हो जाता है, हार्म पहुंचाता है ये पर्टिकुलर गैस या पर्टिकुलर केमिकल्स, देन इन दैट केस आपके ऊपर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो जाएगा। आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा आपके नेबर्स को इन दैट केस। there is no ifs and buts in those cases. Okay, so such liability arises in cases where damage is done by the escape of dangerous substance. इसमें क्या है, escape of dangerous substance. Okay, brought or kept by anyone upon his land. Such cases are where a man is made by law an insurer of other against the result of his activities. मतलब जैसे ही मैंने कोई केमिकल्स लाके मेरे प्रॉपर्टी में रखा है और उससे किसी और को नुकसान हो जाता है उसके लीकेज की वजह से, उसके एस्केप की वजह से, तो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, उस अदर पर्सन को मुझे इंश्योर करना पड़ेगा। मतलब उसका जो भी खर्चा होगा, जो भी उसको कॉम्पेंसेशन करना है, वो कॉम्पेंसेशन मुझे पे करना पड़ेगा। तो मैं किस रोल में आ गया उस केस में, आई विल कम अंडर द रोल ऑफ एन इंश्योरर टू दैट अदर पर्सन। ओके, ये क्लियर हो गया, लायबिलिटी ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। सेकंड है लायबिलिटी ऑफ इनएविटेबल मिस्टेक। लायबिलिटी ऑफ इनएविटेबल मिस्टेक, सच केसेस आर वेयर अ पर्सन इंटरफियर्स विद द प्रॉपर्टी और रेपुटेशन ऑफ अदर्स। मतलब अब समझो मैं अगर गलती से किसी के प्रॉपर्टी में घुस गया और वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेसपासेस आर प्रोहिबिटेड करके लिखा हुआ था, तो ऑल्दो ये मेरा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, लेकिन मैं लायबल हो जाऊंगा। यहाँ पे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, क्योंकि ये कौन सा लायबिलिटी होगा, ये होगा स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ये कवर होगा। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट भी, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक। थर्ड वाला क्या है, विकारियस लायबिलिटी फॉर रॉन्ग्स कमिटेड बाय अदर्स। मतलब कोई दूसरे पर्सन ने जो एक्ट किया उसके लिए मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा, किसी और के एक्ट्स के लिए, किसी और ने टॉट किया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। ऐसे कब होता है, समझो कोई मेरा सर्वेंट है और मैं उसका मास्टर हूँ, तो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में सर्वेंट ने जो एक्ट किया है उसके लिए मास्टर विल बिकम लायबल। सिमिलरली अगर आपको एक और चीज़ पता रहेगा तो प्रिंसिपल और एजेंट जो भी एक्ट करता है, अगर वो टॉट है, तो इन दैट केस प्रिंसिपल विल ऑल्सो बिकम लायबल। सो दिस इज़ व्हाट इज़ विकारियस लायबिलिटी। आगे हम लोग पढ़ेंगे विकारियस लायबिलिटी के बारे में, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसमें भी। तो विकारियस लायबिलिटी फॉर रॉन्ग्स कमिटेड बाय अदर्स। तो ये 3 है कैटेगरीज है जो कि लायबल विदाउट फॉल्ट वाले कंडीशन में आता है, जो कि स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कंडीशन में आता है। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा लिखा लायबल विदाउट फॉल्ट, इसके केसेस
या कंडीशंस या कैटेगरीज बताइए, तो ये 3 पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिख के आना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला केस लॉ देखेंगे, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। तो ये रायलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला केस में अभी क्या हुआ है कि एक पर्सन था, समझो मिस्टर बी, ठीक है, उसने एक वाटर रिजर्वियर बनाने का काम किया अपने प्रॉपर्टी पे, ऑन हिज लैंड, जिसके लिए उसने काम कॉन्ट्रैक्टर को दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने फॉरगॉट टू ब्लॉक ऑल साइड्स, कुछ पार्ट था वो रिजर्वियर का जिसको ब्लॉक करना ज़रूरी था, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स उस पर्टिकुलर साइड को ब्लॉक करना भूल गए या उनसे रह गया, नेग्लिजेंस की वजह से रह गया। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये पानी जो है जो ये रिजर्वियर में जमा हुआ, तो वो पानी एस्केप हो गया, और एस्केप होके मिस्टर ए के कोल माइंस में एंटर कर दिया, जिसकी वजह से मिस्टर ए को क्या हो गया, डैमेज हो गया, डैमेजेस फेस करना पड़ा। ठीक है, अब ये डैमेजेस क्या, ये लीगल डैमेजेस है? हाँ, ये लीगल डैमेजेस है। ठीक है, अब ये मिस्टर बी जो है उसके प्रॉपर्टी से कुछ एक सब्सटेंस है जो कि क्या हो गया, वो एस्केप कर गया। ठीक है, और वो एस्केप करके किसी और को क्या कर रहा है, किसी और के प्रॉपर्टी पे जाके वो डैमेज क्रिएट कर रहा है, एंड हेंस मिस्टर बी हैड टू कॉम्पेंसेट मिस्टर ए फॉर दी डैमेजेस। तो लायबिलिटी किसकी बनी यहाँ पे, मिस्टर बी की लायबिलिटी बनी यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिस्टर बी के प्रॉपर्टी से वो सब्सटेंस निकला है और इट हैज़ कॉज्ड डैमेज टू दी नेबरिंग मिस्टर एस कोल माइंस। ओके, और ये जो बेसिकली ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आ जाएगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर बी ने अपने प्रॉपर्टी पे वो सारा केयर लेना चाहिए था जिससे कि ये पानी नहीं जाए मिस्टर ए के कोल माइंस में, बट फिर भी चला गया। तो इन दैट केस देर इज़ नो एक्सक्यूज, देर इज़ अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एंड हेंस मिस्टर बी इज़ लायबल टू कॉम्पनसेट टू मिस्टर ए इन दिस केस। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला केस। ठीक है, अब कोर्ट ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशल बन जाता है। कोर्ट ने यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया है वो क्या है, मैन एक्ट्स एट हिज ओन पेरिल and is insurer of safety of his neighbor against accidental harm। तो ये केस में पानी जो चला गया वो एक्सीडेंटल हार्म था, लेकिन यहाँ पे मिस्टर बी क्या करके एक्ट करेगा, मिस्टर बी यहाँ पे इंश्योरर करके एक्ट करेगा, और जो भी डैमेजेस हुआ है मिस्टर ए को उसको क्या करना है, कॉम्पनसेट करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके जिम्मेदारी पे वो क्या कर रहा है, वो सब्सटेंस को अपने लैंड पे रख रहा है। उसकी जिम्मेदारी क्या है कि ये सब्सटेंस से वो एस्केप होके किसी और को डैमेज ना पहुंचाए, अगर पहुंचाता है तो ही हैज़ टू कॉम्पनसेट इन दैट केस। ओके, सो सच ड्यूटी इज़ एब्सोल्यूट इन नेचर, सच ड्यूटी इज़ एब्सोल्यूट इन नेचर। अब कुछ केस लॉज भी हमारे पास है, जैसे कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो कि गैस लीक हुआ, गैस लीक होने की वजह से कई सारे लोगों को हार्म पहुंचा, हेल्थ हज़ार्ड बन गया वो चीज़। तो इन दैट केस इट वाज हेल्ड दैट द कंपनी जिसके थ्रू ये गैस लीक हुआ था वो कंपनी का लायबिलिटी हुआ, कंपनी का लायबिलिटी तय किया गया एंड कॉम्पनसेट करने के लिए ऑर्डर पास कर दिया गया। एंड इन केस ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी डू रिमेंबर देयर इज़ नो एक्सेप्शन, देयर इज़ नो एक्सेप्शन। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में फिर भी एक्सेप्शंस है, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में देयर इज़ नो एक्सेप्शन व्हाटसोएवर। ओके, इसके बाद में एक और केस लॉ आया था। इस केस लॉ में क्या हुआ, रीड वर्सेस लियोन्स वाला केस में, इस केस लॉ में 2 कंडीशन दिए गए जहाँ पे कि रायलैंड वर्सेस फ्लेचर जो केस का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई कर सकता है। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो ये रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये 2 कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन है एस्केप फ्रॉम द कंट्रोल, एंड सेकेंड इज़ नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। अगर नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड हो रहा है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर विल बी एप्लीकेबल। आपने कुछ डेंजरस सब्सटेंसेस ला के रखा है अपने लैंड पे, तो उसको नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ
लैंड कहाँ जाएगा। एट द सेम टाइम अगर वो निकल जाता है आपके कंट्रोल से बाहर और वो नेबरिंग जो आपका जो सोसाइटी है, नेबरिंग जो घर है, नेबरिंग जो पीपल रहते हैं उनको हार्म पहुंचाता है, इन दैट केस यू कॉल इट एज एस्केप फ्रॉम कंट्रोल। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर मीट नहीं होता है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस इज़ व्हाट रायलैंड वर्सेस फ्लेचर एंड रीड वर्सेस लैंड, ये दो केस लॉ के अंदर ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस लॉस है। ओके, तो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। अब ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, अभी जैसा मैंने बात किया आपसे कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे यहाँ पे कितने दिए हैं, 6 एक्सेप्शंस हमको दिए हुए हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। अगर आपने नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड किया है और वो अगर किसी रीज़न की वजह से वो एस्केप करता है और डैमेज पहुंचाता है, तो इन दैट केस आप ये डिफेंस ले सकते हो नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड का। इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप एक्सेप्शन से नहीं, इसको आप डिफेंस करके भी नोट डाउन कर सकते हो। तो अगर आपके ऊपर किसी ने ऐसा केस किया है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए, इन दैट केस दीज आर द डिफेंसेस दैट यू हैव। ओके, सेकेंड इज कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। जैसे कि आपने कंसेंट ले लिया उस प्लेंटिफ का, जो भी प्लेंटिफ था उसने पहले कंसेंट ले लिया था, आपने बता दिया ये रिस्क फैक्टर मैं ऐसे ऐसे स्टोर कर रहा हूँ, आपको चलेगा क्या? तो ही सेड ही इज़ ओके विद दोज थिंग्स। तो इफ़ ही हैज़ गिवन द कंसेंट फॉर इट, देन इन दैट केस यू कैन यूज़ इट एज एन डिफेंस। एक्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी, मतलब अगर समझो आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ जैसे एक वाटर रिजर्वियर रखा था, पूरा प्रॉपरली ब्लॉक करके रखा हुआ था, उसमें एक गेट था, ठीक है। अब आपने तो सारा प्रिकॉशंस ले लिया, बट कोई थर्ड पर्सन आते जाते हुए उसने देख लिया, उसने वो गेट खोल दिया। वो गेट खोलने की वजह से पानी क्या हो गया, उधर से एस्केप हो गया। तो ये आपका जिम्मेदारी नहीं था, आपने जो भी प्रिकॉशंस ले सकता था ले लिया था। ये किसी थर्ड पार्टी का एक्ट था, तो इन दैट केस यू कैन यूज इट एज योर डिफेंस और एन एक्सेप्शन टू रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। Then any act done by the statutory authority under its sovereign स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अगर करता है तो और वो उसके सॉवरेन फंक्शंस में आता है, तो इन दैट केस भी आप क्या करके ले सकते हो, उसको डिफेंस करके ले सकते हो। फिर एक्ट ऑफ गॉड जो कि नेचुरल कॉजेज होता है, इन दैट केस ऑल्सो इट कैन बी यूज एज एन डिफेंस। एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट, मतलब प्लेंटिव के खुद की डिफॉल्ट की वजह से क्या हो गया, एस्केप हो गया। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, क्योंकि वो खुद के डिफॉल्ट की वजह से हुआ है, तो दैट इज़ वाई यू कैन टेक इट एज एन डिफेंस। ओके, सो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए जैसे मैंने बोला ये 6 एक्सेप्शंस है, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी के लिए कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। ओके, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का हम लोग एक केस लॉ देखेंगे अभी मॉड्यूल में जब जाएंगे, वो है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वाला। ओके, सो लेट्स गो इनटू द मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल। सो देखो रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर वाला केस है, यहाँ पे पूरा कवर किया हुआ है, तो यू कैन रीड इट वंस। ये रीड वर्सेस लियोन वाला केस भी यहाँ पे कवर किया हुआ है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ है, कैन रीड दैट ऑल्सो। अच्छा, एक्सेप्शंस में क्या है, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज़, ये 6 जो एक्सेप्शंस हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, वो भी अभी हमने कवर किया है। एक बार इसके एग्जांपल्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। डैमेजेस ड्यू टू नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, तो कीपिंग वाटर फॉर ऑर्डिनरी डोमेस्टिक पर्पज इज नेचुरल यूज़। Things not essentially dangerous which are not unusual for a person to have on his land, such as water, pipe installations in building, working of mines, minerals on the land, lighting of fire in fireplace of the house, necessary wiring for supplying electric light fall under the कैटेगरी ऑफ नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। तो यहाँ पे ये भी बताया कि कौन से एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एस्टैब्लिशिंग ए रिजर्वियर फॉर जनरेटिंग पावर ऑन ए रेसिडेंशियल लैंड अमाउंट्स टू नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। तो अगर आप पावर जनरेशन का काम कर रहे हो तो उसको हम लोग नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड में कवर करेंगे, और अगर वो एस्केप होता है फॉर सम रीज़न कॉजिंग हार्म, देन इन दैट केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक स्विमिंग पूल बनाया या वाटर स्टोरेज टैंक बनाया फॉर डोमेस्टिक यूज़, तो उसको हम लोग नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड में कवर करेंगे। तो आई होप दिस पार्ट वॉज क्लियर। सेकेंड इज कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अब कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ में जो है ना, वेयर द प्लेंटिफ हैज़ कंसेंटेड द एक्यूमुलेशन ऑफ द डेंजरस थिंग, जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल में कि कुछ केमिकल्स में लेके आया अपने घर पे रखा और मैंने अपने नेबरिंग जो
नेबर में रहने वाले जो लोग हैं उनको मैंने बताया, उनका कंसेंट लिया कि मैं ये रह सकता हूँ, ये मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, उन्होंने अगर कंसेंट दिया हुआ है तो इन दैट केस such consent is implied where the source of danger is of the common benefit of both plaintiff and defendant, then in that case क्या हो जाएगा, वो एक डिफेंस बन जाएगा. ओके यहाँ पे भी एग्जांपल दिया, A and B living in the same housing complex gives permission to install water pipes. One of the water pipe leaks, thereby causing leakage problem. Neither A or nor B will seek for damages under the law of tort. ये जो वाटर पाइप है ये दोनों ए के लिए, ए के बेनिफिट के लिए भी था, बी के बेनिफिट के लिए भी था. लेकिन अगर बी ने कंसेंट कर दिया कि हाँ वाटर पाइप्स लगा सकते हैं, देन हम लोगों ने वाटर पाइप लगा दिया और फिर बाद में उसमें से लीकेज हुआ, तो ना ए जा सकता है फॉर टॉर्ट के लिए, ना बी जा सकता है फॉर टॉर्ट के लिए. ओके, सो दिस इज द कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ. थर्ड वाला क्या है, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी. एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार वो आप पढ़ लीजिएगा. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगेन ये भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया. पब्लिक बॉडी स्टोरिंग वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड द लाइक आर बाय स्टैट्यूट एग्जम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी सो लॉन्ग एज दे हैव टेकन रीजनेबल केयर. जैसे कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए जो उधर का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो पानी प्रोवाइड करता है. अगर समझो फॉर सम रीज़न वहाँ का जो पानी का जो मशीन्स है वो मशीन्स में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाता है एंड फॉर 2-3 डेज क्या हो जाता है, पानी पहुँचा नहीं पा रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. इन दैट केस यू कैन नॉट होल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर ए टॉर्चियस लाइबिलिटी, because although he is not providing you the service that has to be provided, और उसकी वजह से आपको एक डैमेज भी हो रहा है, लेकिन वो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, इन दैट केस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आप उसको ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस में आ जाता है, एक्सेप्शन में आ जाता है. तो ये वाला पार्ट. फिर एक्ट ऑफ गॉड. एक्ट ऑफ गॉड तो बहुत ही क्लियर है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गया तो दैट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड. भूकंप हो गया, एक्ट ऑफ गॉड. तो उस रीज़न की वजह से अगर कुछ डैमेज होता है तो इन दैट केस आप उसको डिफेंस करके ले सकते हो. एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन डिफ़ॉल्ट, तो ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ठीक है, एक बार इसका एग्जांपल पढ़ लेना आप लोग. अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर जो केस है, वो इन केस ऑफ हज़ार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री में उसको क्या एप्लीकेबिलिटी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. इसमें एक और केस लॉ यहाँ पे जोड़ लिया है इन्होंने, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जो कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑल्सो. ये यहाँ पे भी दिया हुआ है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ. ओके, नाउ while determining the principles on which the liability of an enterprise engaged in hazardous or inherently dangerous industry dependent if an accident occurred in such industry. अभी यहाँ पे जो कोर्ट है उसका जो वर्डिंग्स है जजमेंट का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम लोग एक बार पढ़ते हैं. वी आर ऑफ द व्यू दैट एन एंटरप्राइज विच इज़ एंगेज्ड इन हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री which poses a potential threat to the health and safety of the persons working in the factory. जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए भी वो क्या है, एक हेल्थ हज़ार्ड पोज करता है, पोटेंशियल हेल्थ हज़ार्ड. एंड रिसाइडिंग इन द सराउंडिंग एरियाज, जो लोग आजू बाजू के एरिया में वहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी हेल्थ हज़ार्ड बन सकता है, क्योंकि वो डेंजरस सब्सटेंस है या डेंजरस गैसेस है या केमिकल्स है जिसको वहाँ पे उस इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है. ओज एन एब्सोल्यूट एंड नॉन डेलीगेटेबल ड्यूटी टू द कम्युनिटी. तो अगर आप ऐसे कुछ एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आप ऐसा हज़ार्डस सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो लायबिलिटी है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है, और आप ये लायबिलिटी किसी और के ऊपर डाल भी नहीं सकते. नॉन डेलीगेटेबल लायबिलिटी होगा ये. जब भी कोई भी हार्म होगा किसी भी पर्सन को, इन दैट केस आपको compensation करना ही पड़ेगा. there is no ifs, no buts, no exceptions in this case because it is a case of absolute liability. Okay, तो ये देखिए, to ensure that no harm results to anyone on account of hazardous or inherently dangerous nature of the activity which it has undertaken. If any harm results on account of such activity, the enterprise must absolutely be liable to compensate for such harm, and it should be no answer to the enterprise to say that it had taken all reasonable care and that the harm occurred without negligence on its part. मतलब कि अगर आपने ये डिफेंस लिया कि ये जो भी हार्म जो कॉज हुआ है उसके अगेंस्ट आपने रीजनेबल केयर लिया था और आपने कोई भी नेग्लिजेंस आपकी तरफ से नहीं हुआ है, इस पर्टिकुलर डिफेंस को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया जाएगा इन सच केसेस.
ओके तो जब भी आप कोई हजार्डस सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, जैसे एक ट्रक में हजार्डस सब्सटेंस जा रहा है, ठीक है, और वो ट्रक का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो हजार्डस सब्सटेंस क्या हो जाता है, वहाँ से लीक हो जाता है, और वहाँ पे जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके इनहेल करने की वजह से क्या होता है, उनको एक हेल्थ हजार्ड हो जाता है. देन इन दैट केस दैट पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रक will have a absolute liability to compensate to the persons who are affected by such leakage. Okay, that is known as absolute liability. क्लियर हुआ ये पार्ट. अच्छा, एमसी मेहता वाले केस में क्या हो गया था, ये बहुत ही फेमस केस है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस भी है, वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट केसेस इन इंडिया, जिसमें कि जिसको बोलते हैं ओलियम गैस लीक बोलते हैं इसको. ठीक है, ओलियम गैस लीक केस भी बोलते हैं इसको. कभी कभी नाम आपको एग्जाम में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके नहीं देंगे, ओलियम गैस लीक केस करके दे देंगे. तो आपको याद रखना कि ये वाला केस है वो. एस्केप ऑफ ओलियम गैस फ्रॉम, क्या होता है, देयर वाज एन एस्केप ऑफ ओलियम गैस फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऑन 4th and 6th December 1985. Applications were filed for award of compensation. The persons who suffered harm on account of escape of the oleum gas. As part of the social cost of conducting risky activities on its property, the industry is required to carry out its operations in accordance with the highest standards of safety and must be fully accountable for compensating for any harm that is caused. ये कौन से वाले लाइबिलिटी में आएगा, ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आएगा. चाहे आपने पूरा का पूरा रीजनेबल केयर लिया हुआ है, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है यहाँ पे. क्लियर हो रहा है. तो ये स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आपको समझ में आ चुका है. आई होप आपको समझ में आ चुका है.